welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is damages. Guys, I've told you beforehand that I'll be covering section 73, 74 and 75 of the Indian Contract Act 1872 under the concept of damages. Section 73 को मैंने 2 videos में cover किया था guys. Section 74 has also been covered. All these 3 videos have already been uploaded. You can watch damages chapter from there. And today we are going to discuss last and the most important section, which is section 75, which is damages. Damages का section 75 बहुत interesting और बहुत easy है guys. This video is going to be very short. So guys, let's get started without any further delay with section 75 of the Indian Contract Act. Guys, section 75 clearly बोलता है कि पार्टी rightfully rescinding the contract is entitled to compensation. आपको सिर्फ इतना देखना है कि what is the meaning of rightfully rescinding a contract. कब हम कहेंगे कि एक पार्टी ने एक कॉन्ट्रैक्ट को rightfully rescind किया है. rescind करना, I hope guys आपको पता है, rescind is to cancel or to revoke a contract. When a valid contract has come into existence, जिस पार्टी की ऑप्शन पे a contract is voidable, that party has an option to rescind it, to revoke it or to cancel it. Voidable contract अब क्या होता है? It has been defined under section 2 clause I of the Indian Contract Act. अब आपको पता होगा कि voidable contract क्या होता है? It means a party at whose option a contract is voidable, that person has an option to rescind it. But हम कब कहेंगे कि that party has rightfully rescinded a contract? And if that party has rightfully, in a very right manner, justifiably, with reasonable justification, rescinded a contract, then that person is entitled to claim compensation as damages under section 75 of the Indian Contract Act. Now guys, I'll be beginning with this section with an illustration. Illustration ये है कि बहुत पुरानी illustration है हमारी. For example, there's a singer. He has contracted with manager of a theatre to sing at his theatre for 2 nights a week for 2 consecutive months. अब guys, what happened is कि on the 6th night, this person singer, he willfully absents himself from that theatre. उसने पहली 5 नाइट्स के लिए गाना गा दिया था एंड जो मैनेजर है ऑफ अ थिएटर, ही हैज़ प्रॉमिस्ड दैट आई विल बी गिविंग यू 100 रुपीज़ ईच फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस. इट मीन्स अब आप देखो 500 रुपीज़ तो उस इंसान के पक्के हो चुके हैं सिंस ही हैज़ given his services, rendered his services to the theatre management. और else आप कह सकते हो कि theatre management has availed services of this singer for 5 nights. 5 consecutive nights के लिए वो गाना गा चुका है एंड एज प्रॉमिस्ड फॉर एवरी नाइट्स परफॉर्मेंस उसको 100 रुपीज़ मिलने थे. इट मीन्स 500 रुपीज़ तो उसको दिए जाएंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट के प्रिंसिपल को याद रखना. आई होप गाइज आपको याद है कि यू हैव टू रिस्टोर द इल गॉटन गेन्स. आपने उसकी सर्विसेज भी अवेल कर ली और अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप उसको 500 रुपीज़ नहीं दोगे फॉर सर्विसेज दैट ही हैज़ रेंडर्ड और एल्स फॉर हिज सर्विसेज दैट यू हैव अवेल्ड एज अ थिएटर मैनेजमेंट. इसको हम बोलते हैं रेस्टिट्यूटरी प्रिंसिपल. इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन. बट गाइज व्हाट हैपेंड इज कि ऑन 6th नाइट दिस पर्सन ए, which is the singer, he willfully absents himself from the theatre. अब मैंने आपको बताया था, इस illustration को हमने डिस्कस किया था discharge of contract by way of breach में. गाइज उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अब आपकी जो थिएटर मैनेजमेंट है, he has an option, he is a plaintiff in this case, क्योंकि he will go to the court of law to seek compensation. राइट वो कॉम्पेंसेशन क्यों लेगा, डैमेजेस क्यों लेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रीच्ड बाय द अदर पर्सन विच इज द डिफेंडेंट इन दिस केस हु इज सिंगर ए इन दिस एग्जाम्पल. अब यहाँ पे क्या होगा कि दिस पर्सन जो मैनेजर है ऑफ थिएटर मैनेजमेंट, ही हैज़ एन अपॉर्चुनिटी. उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, ईदर टू रिसेंड इट. मैंने आपको बताया था कि जब भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है बाय वे ऑफ ब्रीच, उसका इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ ब्रीच. तो यहाँ पे क्या होगा, जिस इंसान जो प्लेंटिफ है इन दिस केस, दैट पर्सन हैज़ 2 ऑप्शंस, ईदर टू पुट एन एंड टू दैट कॉन्ट्रैक्ट, ईदर टू रिसेंड इट, टू रिवोक इट और टू कैंसल दैट कॉन्ट्रैक्ट. और यानी कि उसको खत्म कर सकता है, ही मे पुट एन एंड टू दैट कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देगा, ही कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन बिकॉज इन दिस केस दिस मैनेजर इज राइटफुली रिसेंडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. ही हैज़ अ लॉफुल जस्टिफिकेशन, ही हैज़ अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्यों खत्म करना चाहता है, क्योंकि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ ब्रीच. तो इस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, दिस मैनेजर of this theatre management, he is empowered basically or entitled by law कि he can put an end to it. इफेक्ट 2 तरीके से होता है, या आप उसको खत्म कर सकते हो और you may still keep that contract subsisting and alive. If you remember, याद है 2 इफेक्ट्स होते हैं, या आप खत्म कर सकते हो, you may put an end to that contract, you may put a full stop to that contract and you may rescind it, revoke it permanently. But on the other hand, you may keep it still alive and subsisting. उसको as it is आप रख सकते हो. Now in this example, अगर
जो आपका मैनेजर है ऑफ थिएटर मैनेजमेंट, ही डिसाइड्स टू रिसेंड इट, ही डिसाइड्स टू रिवोक इट। अब गाइज 6th नाइट को सिंगर ने गाना नहीं गाया, इट मीन्स इट वॉज ड्यू टू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट of part of his obligation। किसकी obligation? सिंगर की। सिंगर has failed to perform his part of obligation as a result of non-fulfillment of his obligation, of his promise. This singer has become defendant in this case and the other person plaintiff, theatre management, is entitled, lawfully entitled to claim compensation। compensation क्यों claim कर सकते हैं under section 75? Because he is rightfully rescinding this contract। like with lawful justification, with reasonable justification, he is in a very right manner rescinding it। उसने डिसाइड किया कि I wish to put a stop to it। इसके बाद अब मैं सिंगर को नहीं गाना गाने के लिए बुलाऊंगा, since once he has made a breach of this contract। अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, दो कॉन्सेप्ट हैं, या एक तो सिंगर को, अब आप देखो आपका जो मैनेजर है उसको भी कॉम्पेंसेशन मिलेगी, और कितनी कॉम्पेंसेशन मिलेगी? जो रीजनेबल रेम्यूनरेशन होगी, कोर्ट को जितना भी रीजनेबल लगेगा वो उसको वो दिलाएंगे। मे बी लॉस ऑफ प्रॉफिट उसको दिलाया जाए, तो जितनी भी रीजनेबल रेम्यूनरेशन होगी वो मैनेजर को दिलाई जाएगी। बट गाइज आप यहाँ पे देखो, अब ये है आपकी 6th नाइट। 6th नाइट के पहले जो 5 नाइट्स के लिए वो गाना गा चुका, ठीक है, 6th नाइट है, उसके पहले आप इधर से देखो 6th नाइट के पहले वो जो गाना गा चुका फॉर 5 नाइट्स। अब जो मैनेजर है वो ये नहीं बोल सकता कि आई विल नॉट बी पेइंग यू 500 रुपीज एज प्रोमिस्ड, बिकॉज गाइज प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा काम करेगी। प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि यू कैन नॉट enrich yourself basically at the cost of another। यहाँ पे जो मैनेजर है he cannot enrich himself in a wrong manner, unjust enrichment वो नहीं कर सकता at the cost of some other person। some other person is singer in this case। आपको उसको 5 नाइट्स के लिए 500 रुपीज देने हैं as promised, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन है। दिस थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड गाइज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैरिड। क्वांटम मैरिड इज अ लैटिन फ्रेज जिसका मतलब होता है एज मच एज वन डिजर्व्स। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, सिंगर हैज मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट उस ब्रीच का इफेक्ट ये निकला कि मैनेजर ने क्या किया, उसको रिसेंड कर दिया फॉर फर्दर नाइट्स टू कम। आगे वाली जो नाइट्स आने वाली हैं उसके लिए ही हैज रिसेंडेड इट, ही हैज पुट अ फुल स्टॉप और एन एंड टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी जो आपने सर्विसेज अवेल करी हैं फॉर 5 नाइट्स आप उसके लिए उसको पैसा नहीं दोगे। क्वांटम मैरिड का मतलब होता है एज मच एज वन डिजर्व्स, ही डिजर्व्स टू बी कॉम्पेंसेटेड फॉर 5 नाइट्स एटलीस्ट, तो उसको 500 रुपीज मिलेंगे अंडर द प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैरिड। अब रही बात मैनेजर की, मैनेजर को भी कॉम्पेंसेशन देनी होगी बाय दिस पर्सन डिफेंडेंट। सिंगर को मैनेजर को पैसा देना होगा बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन, बाय वे ऑफ डैमेजेस, क्योंकि ही हैज ऑल्सो मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हैज बिन डिस्चार्ज्ड, इट हैज कम टू एन एंड। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो पार्टीज की थी, इट हैज कम टू एन एंड। नाउ पार्टीज हैव नो मोर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ईच अदर। कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज ऑन 6th ऑफ नाइट, और उसके बाद सिंगर नहीं आएगा गाना गाने बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज। पार्टीज हैव नो लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ईच अदर। और इसके बाद का जितना भी प्रॉफिट, जितना भी लॉस हुआ, जो रीजनेबल रेम्यूनरेशन बनेगी कोर्ट के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 75, वो किसको दी जाएगी? प्लेंटिफ को दी जाएगी, यानी कि थिएटर मैनेजमेंट को दी जाएगी बाय दी जो हमारा सिंगर है। अब गाइस आपको समझ है कि सेक्शन 75 का बेसिक प्रीमाइस क्या है? इट बेसिकली टॉक्स अबाउट कि जो भी पार्टी राइटफुली रिसेंड करती है एक कॉन्ट्रैक्ट को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ पे राइटफुली रिसेंड का मतलब है क्या, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। You must rescind, you must revoke, you must cancel or put an end to that contract with a lawful justification कि आप ऐसा क्यों करते हो। So any party here, हम यहाँ पे बात करें theatre management की, a party which is rightfully rescinding the contract, that party is entitled to claim compensation। अब उसको reasonable remuneration court दिलाएगी by the other person, since इसका क्या हुआ है, लॉस हुआ है, डैमेजेस देखने को मिले। डैमेजेस का कॉन्सेप्ट यही होता है ना, डैमेजेस का मतलब कि हैड द कॉन्ट्रैक्ट बीन परफॉर्म्ड, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता, अगर सिंगर 2 नाइट्स इन एवरी वीक फॉर कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स गाना गा देता, तो जिस पोजीशन में ये थिएटर मैनेजमेंट होती, जिस प्रॉफिट पे वो होती, उसको वहीं पे लाके खड़ा कर दिया जाएगा। मैंने आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में डैमेजेस का बेसिक्स बताया था कि डैमेजेस हम क्यों देते हैं, कोर्ट डैमेजेस को क्यों ग्रांट करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल और द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ग्रांटिंग डैमेजेस। एंड आई हैव टोल्ड यू कि डैमेजेस आर नॉट रेस्टिट्यूटरी इन नेचर, दे आर कॉम्पेंसेटरी इन नेचर। अब आप देखो यहाँ से 6th नाइट के पीछे क्या चलता है, रेस्टिट्यूशन, और इसके आगे क्या है, कॉम्पेंसेशन। पीछे से रेस्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि आपको क्या करना है, रेस्टिट्यूट करना है आपको जो अपने बेनिफिट्स या सर्विसेज अवेल करिए, यू हैव गॉट टू पे फॉर देम, यू कैन नॉट अनजस्टली एनरिच योरसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ सम अदर पर्सन। लेकिन
प्रोवाइडेड आपको भी कॉम्पेंसेशन कोर्ट दिलाएगा। कॉम्पेंसेशन क्यों दिलाएगा? बिकॉज हैड दिस कॉन्ट्रैक्ट बीन परफॉर्म्ड बाय द सिंगर, तो जिस पोजीशन में आप होते उस पोजीशन में कोर्ट आपको लाके खड़ा कर दिया जाएगा, आपका नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। तो हम डायरेक्ट लैंग्वेज रीड करते हैं। अ पर्सन हु राइटफुली रिसेंड्स द कॉन्ट्रैक्ट, थिएटर मैनेजमेंट इन दिस केस इज एंटाइटल्ड, लॉफुली एंटाइटल्ड, कोर्ट आपकी हेल्प करेगा अंडर सेक्शन 75 टू क्लेम कॉम्पेंसेशन, राइटफुली एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन फॉर एनी डैमेज और फॉर एनी लॉस दैट ही हैज सस्टेन्ड। डैमेज मतलब क्या है गाइस? यहाँ पे कोई भी आपको डैमेज हो सकता है। लॉस ऑफ प्रॉफिट इज अ काइंड ऑफ डैमेज जो आपको हुआ, ठीक है। फॉर एनी डैमेज विच ही हैज सस्टेन्ड, ही मीन्स थिएटर मैनेजमेंट इन दिस केस, थ्रू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन फुलफिल्ड, इसीलिए आपको क्या हुआ? लॉस हुआ, इसीलिए आपको डैमेज हुआ। हैड दिस कॉन्ट्रैक्ट बीन फुलफिल्ड, हैड दिस कॉन्ट्रैक्ट बीन परफॉर्म्ड बाय द सिंगर, तो ये पोजीशन ना आती, तो कोर्ट आपको डैमेजेस दिलाएगा उस सिंगर से और उस पोजीशन में लाके खड़ा करेगा जिस पोजीशन में आप होते हैड द कॉन्ट्रैक्ट बीन परफॉर्म्ड। आई होप गाइस सबको पता लग चुका है कि डैमेजेस हमेशा मिलते हैं इन केस ऑफ ब्रीच। वन ऑफ द टू पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली मेक्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो हमेशा क्या करेगा? एक इंसान ब्रीच करेगा। अब क्वेश्चन ऑफ ब्रीच जब अराइज होता है वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ डैमेजेस अराइज होता है। सो आई होप गाइज आपको समझ आ चुका है कि फिर यहाँ पे डैमेजेस देते हैं, कोर्ट डैमेजेस ग्रांट करता है। आई होप गाइज आपको सेक्शन 73, 74 एंड 75 क्लियर हो चुका है। कॉन्सेप्ट ऑफ डैमेजेस होता क्या है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड ग्रांटिंग डैमेजेस और किस तरीके से डैमेजेस ग्रांट करते हैं। गाइज आप सेक्शन 73 को जरूर देखना। सेक्शन 73 को मैंने 2 पार्ट्स में कवर कराया। आई हैव टेकन 2 लेक्चर्स ऑन सेक्शन 73 क्योंकि इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक सेक्शन ऑफ डैमेजेस। अगर आपको वो सेक्शन पता है, सेक्शन 74 एंड 75 इज क्वाइट इजी एंड इंटरेस्टिंग। सो गाइज थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय।